ایسوسیشنز اور اس کے ساتھ جڑی تاجر کمیونٹی جو ہے ان کو درپیش مسائل اور حل کے لیے جو مل بیٹھ کے تجاویز دیں، میں ان کی شکر گزار بھی ہوں۔ آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی طرف سے میں لبرٹی مارکیٹ ٹریڈر ایسوسیشن کے لیے ایک پیغام لے کے آئی ہوں، کیونکہ یہ مارکیٹ ہی نہیں، یہ لاہور کا ایک بہت بڑا معاشی ہب ہے اور لاہور کی معاشی شہرگ ہوتے ہوئے یہ اشد ضروری ہے کہ لبرٹی مارکیٹ، جس نے آج سے 30 سال پہلے کاروباری دنیا میں ایک آرگنائزڈ سٹرکچرل ایک بہتر پلیٹ فارم، جس سے ہماری تاجر تنظیمیں اور ان کے ساتھ جڑے تمام جو عوامی مفاد اور کسٹمر کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ جس قبضہ مافیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان برسر پیکار ہیں اور پرعزم ہیں کہ ان کو انہوں نے شکست دینی ہے، یہ لبرٹی مارکیٹ ٹریڈر ایسوسیشن بھی اسی قبضہ مافیا کے ہاتھوں یرغمال رہی، اور آج انہوں نے اپنی جو یرغمالی کی زنجیریں ہیں ان کو توڑ کر وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب کی تاجر دوست پالیسیز پہ مکمل اعتماد کیا، اور جو حکومت پنجاب نے پنجاب کے اندر ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے، چھوٹے تاجروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، جو اوورآل ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے، جو ہمارے ٹیکس کے قوانین کے اندر ترامیم کی ہیں، ٹریڈرز ایسوسیشن نے ان کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ مکمل ہمیں اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے، اور یہ باور کروایا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جس نیک نیتی سے، جس قومی مفاد میں یہ ریفارمز لا رہے ہیں، بزنس کمیونٹی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور بزنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو چھوٹا تاجر ہے اس کو اس حکومت نے جو سرپرستی دی، اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اس سے جو مشاورتی عمل شروع کیا، وہ ٹیکس ریٹرنز ہوں، وہ سیل ٹیکس ہو، وہ انکم ٹیکس ہو، وہ جتنے بھی ڈیجیٹلائز سٹیپس حکومت نے اٹھائے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے، لبرٹی مارکیٹ ٹریڈر ایسوسیشن ان تمام انیشیٹو کا حصہ ہے اور بھرپور انداز سے حکومتی کاوشوں کو ہر طرح سے اونرشپ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ جانتے ہیں کہ چونکہ تجارت پیشہ پیغمبری ہے اور نبی اکرم آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اہم ترین ان کی ذات کا جو پہلو تھا، اس میں انہوں نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسے مقدس پیشے کا انتخاب کیا تھا۔ آج تاجر برادری جو ہے وہ اسی شیوہ پیغمبری کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھانا چاہتی ہے،
ये बदकिस्मती रही कि चंद तजारत के नाम पे एक सरमायादार और कारोबारी ग्रुप ने पाकिस्तान के उस मुकद्दस और अहम पेशे पे कब्ज़ा किया और सियासत और तजारत को इकट्ठे करके तजारत के अंदर भी कब्ज़ा ग्रुप परवान चढ़ाए और तजारत के अंदर जो एक पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शोबा था उसको भी मुतनाज़ा बनाया और वहाँ से ऐसे ऐसे गैंग्स को जन्म दिया कि जो अल्टीमेटली जो तजारत थी उन्होंने सिर्फ एक शोकेस के तौर पे रखी, असपर्दा उन कारोबारी अफराद ने कब्ज़ा करना, माफियाज को मजबूत बनाना और अवामी हकूक़ का कत्लेआम करना उन्होंने अपना वतीरा के इंसाफ के यहाँ इमरान खान के सिपाही और वो तमाम एसोसिएशन के अहदेदारान सीसा पिलाई दीवार बन के उस इंतकामी माइंडसेट का मुकाबला करते रहे। मैं आज उनको खराज तहसीन पेश करने आई हूँ और मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जो इस वक्त ताजर दोस्त प्रोग्राम है उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा इंपोर्ट के साथ जुड़ा ट्रेडर है जो कीमती ज़र मुबादला बाहर भेज के इम्पोर्टेड ब्रांडेड सामान मंगा के पाकिस्तान की एलीट को सर्व करता है और उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है। वज़ीर आज़म के ये जो सिपाही हैं वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर कारोबारी कम्युनिटी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत वो मंसूबे फैसलाबाद में वो स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट जोन्स सी पैक के साथ जुड़े मुख्तलिफ हमारी जो स्टेट जोन्स के साथ जुड़ी वो कारोबारी हजरात के लिए नर्सरियाँ हैं जिनका मकसद ये है कि उन ब्रांड्स को पाकिस्तान यहाँ इन्वेस्ट कराएं और पाकिस्तान का वो कीमती ज़र मुबादला बचाएं और टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करवाएं। तो ये जान के मुझे खुशी हुई कि जहां हमारा ये ट्रेडर कम्युनिटी जो है वो इंपोर्ट कर रही है चीज़ें वहाँ साथ साथ पाकिस्तान में उसी क्वालिटी से मैच करती हुई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रही है ताकि ना सिर्फ ये लोकल ज़रूरियात को पूरा करें बल्कि अपनी उन कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करें और अल्टीमेटली पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के दें। तो इनकी जो गुजारिशात थी मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत की रोशनी में मुतल्लिका MNA और MPS के साथ मुशावरत करके फिलफौर उसका हम तदारक करेंगे उन मुश्किलात का और वो इनकी ज़ात के लिए नहीं है, ये ट्रेडर एसोसिएशन का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं उसमें उनकी तरफ से एक तो लिबर्टी मार्केट के बारिश के मौसम में जो सीवरेज और ड्रेनेज की प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से पानी खड़ा होता है और उसको तकलीफ़ होती है और उससे कारोबार मुतासर होता है। उसके लिए इन्होंने अपना एक जो इनका हक अपनी तरजीहात हुकूमत के सामने रखी हैं। इसके अलावा ये चाहते हैं कि यहाँ एक अंडरपास बने ताकि जो सड़क के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन है उसका शिकार जो हमारा कस्टमर होता है और उसका कीमती वक्त ज़ाया होता है, पेट्रोल ज़ाया होता है, तो हम उसको बचाएं और इर्द गिर्द जो है हम पैदल शॉपिंग के ट्रैफिक के जो इस वक्त बेहंग मसाइल इस वक्त जो चले हुए हैं उनसे इनको निजात मिले।
लाइवलीहुड और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो लाहौर समेत पाकिस्तान के शहर को खूबसूरत बनाने का जो बेड़ा अपने साथ आया, अपने PHA के प्लेटफार्म से लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी चौक, इसके इर्द जितने भी ऐसे मुकाम और प्लेसेस हैं जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकता है, उसके लिए एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट फ्राहम करने के लिए इन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं। इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे। मैं जितनी तजावीज़ बरादरी इस वक्त मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत कंप्री वेरी डिफाइंड और वेरी वेल प्लान सनती पॉलिसी जो है उसको पैन करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और उसके अंदर आपकी तमाम जायज़ ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में आजर और अजीर दोनों आते हैं। जहां हमने इंडस्ट्री के इन्वेस्टर्स का ख्याल रखना है, वहां उसमें काम करने वाले वर्कर्स को उनकी बुनियादी हकूक़ और उनकी ज़रूरत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। कि भाई मौजूद हैं, वो जानते हैं कि मेरी ये कोशिश है और उस पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं कि मीडिया भी एक इंडस्ट्री का रूप धारे और मीडिया के लॉज जो हैं, जो हमारी नई इंफॉर्मेशन पॉलिसी पंजाब के अंदर मैं लेके आ रही हूँ, को एक इंडस्ट्री का दर्जा देने जा रहे हैं और मिनिस्ट्री इंडस्ट्री के साथ मिल बैठ के जो मीडिया वर्कर्स हैं उनके राइट्स को भी हम तरह करने जा रहे हैं। जिस तरह किसी और इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला वर्कर जो है उसकी तमाम जो है वो बुनियादी ज़रूरतें सोशल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हों या ओवरऑल जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का वो रोड मैप जो इंडस्ट्रियल वर्कर या वर्कर करने जा रहे हैं, तो ये अमल इसको हम रंगबाजियों के लिए मशहूर था। लाहौर इससे पहले शोबाजियों के लिए मशहूर था और लाहौर के अंदर जो बागों का शहर था, जो हसीन हमारे सकाफ़ती इमारतें और मुख्तलिफ तहज़ीब और तमद्दन का जो सदियों पुराना एक अपना हुस्न और एक अपनी तारीफ़ और कमाल ये शहर रखता था, वहाँ पे एक ग्रहण लग गया। एक ख़ानदान ने आके उस हुस्न को ग्रहण ज़दा कर दिया और वो जाती उम्रा का जो टोला था उसने इस शहर के खूबसूरती को, इसके फूलों को, इसके पौधों को, इसके दरख्तों को कंक्रीट ज़दा कर दिया और जहाँ फूल उगलती थी वो ज़मीन, वहाँ उन्होंने जगह जगह कंक्रीट करके अपने सरिये बेचे और लोगों के ज़हनों को भी कंक्रीट करने की साजिश तैयार की कि किसी का दिमाग काम ही ना करे और हमारे ख़िलाफ़ कोई रजिस्ट ही ना करे। लेकिन मैं ख़ाज तहसीन पेश करती हूँ कि लिबर्टी मार्केट के मेरे जो PTI के ट्रेडर्स हैं, इन्होंने उस सबसे बड़े आमरीत के दौर में जहाँ ज़िले सुबहानी का और शाही ख़ानदान का फरमान जारी होता था, उस दौर में भी कलमा हक जो है वो ये कहते रहे और अपनी आवाज़ को इन्होंने बुलंद रखा। आज उसी आवाज़ को ताकत देने के लिए इनकी बहन इनके दरमियान मौजूद है और मैं उनको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह हम आपकी जायज़ ज़रूरियात और आपके जो मुतालबात हैं उनको हुकूमत जो है प्रायोरिटी पे देखेगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि एक काम है जो हुकूमत का करने का है, एक काम है जो हम इस वक्त जो है वो पब्लिक पार्टनर ला के
पब्लिक के साथ प्राइवेट पार्टनर। तो ये जितने इनके इनिशिएटिव हैं हम इसको देखेंगे कि लिबर्टी मार्केट के अंदर जो कैपेबिलिटी, पोटेंशियल और इकोनॉमिक वायबिलिटी है, ये टीम जो है वो अपने इन प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हुकूमत के बाजू बन के इन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या किरदार अदा करती है। इंशाल्लाह इनके साथ जो की गई कमिटमेंट्स हैं उनकी हम पासदारी करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला की क़यादत में जो पंजाब को वो काटेज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हब बनाने के लिए पुरज़म है और 13 अजला में हम काटेज इंडस्ट्री जो है उसको हर तरह से ओनरशिप देने जा रहे हैं और वो 13 अजला जो है जब वहाँ प्रोडक्शन होगी, हमारे जो मेकर्स हैं वो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी मंडियों में माल जो है वो भेजेंगे और ये दुकानदार उनको पैक करके पब्लिक को बेचेंगे, तो एक जायज़ मुनाफा कमाएंगे और कौम का कीमती ज़र मुबादला बचाएंगे। तो ये वो हिकमत अमली है जिससे पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि रात इस्लामाबाद में, परसों रात इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल के बायस एक हादसा हुआ है जिसमें 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। आपकी हुकूमत में भी प्रोटोकॉल कल्चर वैसे ही चल रहा है कुछ जगहों पर, क्या कहती हैं इस प्रोटोकॉल कल्चर के हवाले से और इस हादसे के हवाले से आप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल कैबिनेट मीटिंग में एक डिस्प्लेयर शो किया, नोटिस लिया सख्त इस वाक़े का, और इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती होगी कि ये ख़ानदान ग़ुलामा जो चला सिलसिला जो है और ये नून लीग की बाक़ियात में से एक ख़ातून जो है वो इस वक्त सरकारी प्रोटोकॉल से आवाम को कुचलने में और बेगुनाहों पे चढ़ दौड़ने में उसने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया और 4 कीमती जानें जो हैं उस हादसे का चूँकि सिर्फ इसलिए शिकार हो गई कि तवज्जो कहीं और मरकूज़ थी। तो लिहाजा मैं ये चाहूँगी कि जो प्रोटोकॉल है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सोच की नफ़ी है और वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि जो अवाम का खादम है, जो अवाम को जवाबदेह है और जो पाकिस्तान के कानून के ताबे है, उसको ये जाली नमूद नुमाइश की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इस वक्त आप जिस अंदाज से जिक्र कर रहे हैं, ये बदकिस्मत दिन भी पाकिस्तान ने देखना था कि कुछ ऐसी माशाल्लाह से रिकॉर्ड याफ्ता ख़वातीन जो हैं उनको सरकार प्रोटोकॉल दे रही हो, रियासत प्रोटोकॉल दे रही हो, वो जिनको सरकार की छतरौल उड़नी चाहिए थी वो सरकार के प्रोटोकॉल एंजॉय करते हुए अवाम की छतरौल करने में मसरूफ़ अमल है और अवाम पे गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं जिनके गले में कानून की हथकड़ियाँ होनी चाहिए थी। वो आज भी जो है उसी तरह डिटाई से, हट दर्मी से और बज़िद हो के अपने ओहदे पे फायज़ हैं। और अगर ये गैरत के तकाज़े होते हैं, और मेरे वालिद साहब मरहूम फरमाया करते थे कि बेइज्जती महसूस करने के लिए पहले इज़्ज़तदार होना ज़रूरी है। बेइज्जत वो होता है जिसकी पहले कोई इज़्ज़त हो। तो चूँकि सरेआम करोड़ों रुपए अकाउंट से बरामद हुए, नैब ने अदालतों में वो हकीकत आश्कार की, चेहरा दिखाया, हकीकी आईना दिखाया और गठजोड़ बेनकाब किया, तो बजाय इसके कि उस महज़ब, मुक़द्दस, आइनी और कानूनी ओहदे से अलहदा हो और इस्तीफ़ा दें और अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों का जवाब दें, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में इजाफा करके अवाम पे चढ़ाई शुरू कर दी है और नहत्ते शहरियों पे गाड़ियाँ चढ़ानी शुरू कर दी हैं। तो वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया और इंशाअल्लाह इसका तदारक होगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आज मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ है, जो खुशाइन बात है, लेकिन जो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं उन्होंने 2 रोज़ पहले बयान दिया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, जो शहरी ये लगवाएं अपनी ज़िम्मेदारी पर लगवाएं।
کیا یہ واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ عوام پہ تجربہ کیا جا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرونا فنڈ کے حوالے سے 2 روز قبل پنجاب اسمبلی میں ایک رپورٹ جمع ہوئی کہ وزیر اعلیٰ کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 16 کروڑ فنڈز جمع ہوئے، لیکن ان میں سے 1 پائی بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کی گئی. وہ پیسے کہاں گئے؟ 2 امپورٹنٹ سوال ہیں. پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد دوں گی کہ آپ نے ایک مشکل گھڑی، 1 سال پورا ایک اذیت سے جڑا اور مسائل کے انبار کے ساتھ جڑا وہ سال جو ہے جس خندہ پیشانی سے، یکجہتی سے اور ایک قوم بن کے قومی ہم آہنگی سے گزارا ہے، وہ پوری قوم اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے اور میں آپ کے حوصلوں کو سلام پیش کرتی ہوں. چونکہ چائنا جو ہے وہ ہمارا ایک انتہائی اہم کلیدی دوست ملک ہوتے ہوئے ہمیشہ ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو جو چائنا نے ویکسین پاکستان کو تحفے میں دی ہے، یہ پاک چین دوستی کا حقیقی عکاس ہے اور یہ عمل جو ہے وہ پاک چین دوستی کا برملا اظہار ہے. رہی بات اس میں کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ، پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی آپ نئی ویکسین ریسرچ کر کے انٹروڈیوس کراتے ہیں تو وہاں پہ کچھ پرسنٹیج میں وہ چیلنجز رہتے ہیں. 100% سائیڈ ایفیکٹ فری ویکسین دنیا میں ابھی کہیں پہ بھی دستیاب نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے آہستہ آہستہ، اور میں توقع کرتی ہوں کہ چائنا جیسا ملک جو ہے اس نے بڑی ریسرچ اور ڈیپ ریسرچ کے بعد ایک پراپرلی اس کے ٹیسٹنگ کر کے یہ ویکسین پبلک میں متعارف کرائی ہے اور اس کے نقصانات جو ہے وہ منیمم ہوں گے اور کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کہ بظاہر کے جس کی وجہ سے اس ویکسین کو لگانے سے کوئی انسانی جانوں کو خطرہ ہو. انسانی جانوں کو تحفظ دینے کا یہ ویکسین ذریعہ بنے گی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج پنجاب کے لیے باضابطہ طور پہ اس ویکسین کو ریسیو کر کے انوگریٹ کیا. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے فنڈز کی، دیکھیے کرونا کا ایک ایسا چیلنج ہے جو اوورآل ہم سب نے جس کو مل کے اوورکم کرنا ہے. چیف منسٹر کے فنڈ میں اسپیشلی کوئی ایسا کسی باہر سے کرونا کا فنڈ نہیں آتا. یہ ایک اپنے پروگرامز ہیں آپ کے، جو پروگرامز آپ کی اپنی ہیلتھ کیئر سیکٹر کے تھے، جو آپ نے ساس پروگرام کے ساتھ اس کو جوڑا تھا، جو آپ کی روزگار اسکیم کے ساتھ، پھر انڈسٹریل کمیونٹی کو جن کی فیکٹریاں بند ہوئی ان مزدوروں کو، اور پھر ان کے بلوں کے حوالے سے آپ نے جو ریلیف دیا، یہ اس سلسلے کی فنڈز کی دستیابی ان کے اکاؤنٹ میں ایز اے ریلیف پیکج کے طور پہ آئی ہوگی. میں اس کو تفصیل سے دیکھ لوں گی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیف منسٹر کے اکاؤنٹ میں کرونا کے لیے کوئی فنڈ آئے تو وہ خرچ نہ کیا جائے. اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے اور باضابطہ طور پہ میں اس کو آپ کو اپڈیٹ کروں گا. ڈاکٹر صاحبہ ایک اس میں ہم آپ سے اور گزارش کریں گے کہ آپ سی ایم صاحب سے اور پی ایم صاحب سے درخواست کریں کہ جو ہمارے کیمرہ مین ہیں اور ہمارے رپورٹرز ہیں یہ بھی ہر اول دستہ ہیں